بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا قد وجدنا ما وعدنا
فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और हमें भी अल्लाह पाक शब व रोज़ कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम नसीब फरमाए। तिलावत कलाम पाक के बाद नातिया कलाम पेश करने के लिए हाफिज़ इस्माइल इब्न हाफिज़ ज़करिया लहर को दावत देता हूँ कि वह आए और नातिया कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह 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 मौजूह शम्स الضحى من خده بدر الدجى من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمام من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمام إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 أكبادنا مجروحة من سيفه دير المصطفى أكبادنا مجروحة من سيفه دير المصطفى طوبى لأهل بلدة طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم طوبى لأهل بلدة طوبى لأهل بلدة فيها
فيها النبي المحتشم. إن التياء ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام. إن التياء ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام. بلغ سلامي روضة، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. الله 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 الله. يا سيدي رسولنا، يا سيدي حبيبنا، يا سيدي رسولنا، يا سيدي رسولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चा और पक्का इश्क अता फरमाए और आपकी सुन्नतों की इत्तिबा नसीब फरमाए। एक साहिब खैर की जानिब से तमाम मुसाहिमीन को 500 रुपये मौसूल हुए हैं। फ़जज़ाहुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब मैं हज़रत कारी साहब के साथ तशरीफ़ लाए हुए हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब कावी को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाए और तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم माशा अल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। अल्लाह तबारक व तआला क़ारी साहब को बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाए, मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। क़ारी साहब के लिए एक साहिब खैर की तरफ से 1000 रुपये मौसूल हुए हैं, एक और साहिब खैर की जानिब से 500 रुपये मौसूल हुए हैं। फ़जज़ाहुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब मैं हाफिज़ सईद अहमद साहब हज़रात को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाए और मुख्तसर नात पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए, मौत मुझको मदीने में आए, जान कदमों पे निकले नबी के, जान कदमों पे निकले नबी के, और वहीं मुझको दफनाया जाए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए, मौत मुझको मदीने में आए, जान कदमों में निकले नबी के, नबी के जान कदमों में निकले नबी के, और वहीं मुझको दफनाया जाए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, लेके बागों में प्यारे नबी को, लेके बागों में प्यारे नबी को, कह रही थी ये दाई गलीमा, कह रही थी ये दाई गलीमा, अल्लाह अल्लाह चेहरा नबी का, अल्लाह अल्लाह चेहरा नबी का, जो भी देखे वो कुर्बान जाए, जो भी देखे वो कुर्बान जाए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, अज़मते मुस्तफ़ा क्या बयां हो, अज़मते मुस्तफ़ा क्या बयां हो, शान मेरे नबी की न पूछो, शान मेरे
नबी की न पूछो, मेरे कासिम सारा ज़माना, मेरे कासिम सारा ज़माना। जिनकी चौखट पे सर को झुकाए, जिनके चौखट पे सर को झुकाए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। है सहारा में मुस्तफ़ा का, है सहारा में मुस्तफ़ा का। छोड़ती है जो दुनिया, छोड़ती है जो दुनिया, हमसे दामन नबी का न छूटे, हमसे दामन नबी का न छूटे। चाहे सारा जहां रूठ जाए, चाहे सारा जहां रूठ जाए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। ज़ाहिराने मदीना की अज़मत, ज़ाहिराने मदीना की अज़मत। कोई पूछे मेरे दिल से पुरनम, कोई पूछे मेरे दिल से पुरनम, उनकी आँखों पे कुर्बान जाऊं, उनके आँखों पे कुर्बान जाऊं, उनके आँखों पे कुर्बान जाऊं। जो दियारे नबी देख आए, जो दियारे नबी देख आए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। मौत मुझको मदीने में आए, मौत मुझको मदीने में आए, जान कदमों पे निकले नबी के, और वहीं मुझको दफनाया जाए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदीना पाक की मौत नसीब फरमाए। आमीन। अब मैं आज की इस दीनी मजलिस में तशरीफ़ लाए हुए हमारे खुसूसी मेहमान हज़रत मौलाना कारी उसामा साहब दामत बरकातुहुम का साहिब खाना जनाब यूनुस भाई हजरत और उनकी फ़ैमिली की तरफ से हज़रत कारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि कारी साहब ने हमारी हक़ीर सी दावत पर लब्बैक फरमाया और हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपकी आमद को कबूल फरमाए, हम सब के लिए नाफ़े बनाए। अब मैं हज़रत ही से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि अपनी मखसूस जगह पर तशरीफ़ ले आए और अपने कीमती मलफूज़ात से सामईन को महज़ूज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला
لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में, कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। इतने संग दिल है कि रस्म हया याद नहीं। हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है कुरान का रास्ता याद नहीं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। अल्लाह मेरा आना, आपका बैठना लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमाए। इस रंग में इस महफिल को मकबूल बनाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। यूनुस भाई, इनके वालिद मोहतरम की इज़हार ताज़ियत में ये मजलिस मुनाकिद की गई है। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह तमाम मरहूमीन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। हम सबको मौत से पहले पहले अल्लाह अपनी रज़ा वाले अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक दिन ये फ़ानी जहान छोड़ के हम सबको जाना है। हमने अपनी जामा मस्जिद से कई मुर्दों के ऐलान सुने, फलाना आज चला गया। हमारे व्हाट्सएप पे मैयत ग्रुप होता है, पता चलता है कि आज फलाना चला गया। एक वक्त आएगा मेरा तुम्हारा मैसेज लोग पढ़ेंगे। आज हम दूसरों का मैसेज पढ़ते, आज दूसरों को कांधों पे उठाते हैं। एक वक्त आएगा मुझे और आपको उठाया जाएगा। आज दूसरों को कफन उड़ाते हैं, एक वक्त आएगा सफेद चादर मेरे और आप पे जिस्म पे डाली जाएंगी।
हम रोजाना अपने इख्तियार से गुस्ल करते हैं। एक वक्त आएगा हम मुर्दा लाश पड़े होंगे, कुछ हाथ आएंगे हमें गुस्ल देंगे। वो वक्त मेरा तुम्हारा कौन सा है वो कोई नहीं जानता। रात को सोते नहीं गारंटी सुबह उठते कि नहीं, कितने ऊपर ही उठ जाते हैं। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते। हमारी माणिकपुर बस्ती सालों पुरानी है, बस्ती वहीं खड़ी है, रहने वाले बदल गए। मकान वहीं खड़े हैं, मकीन बदल गए। गाड़ियां वही है, चलाने वाले बदल गए। प्लॉट वही है, दस्तावेज बदल गए, दस्तखत बदल गए। चीजें वही रहती है, इस्तेमाल करने वाले बदल जाते हैं। आज खेत तुम्हारे नाम है, वो तुम्हारे नाम तुमसे पहले कईयों के नाम रह चुका है। आज दादा की गाड़ी बेटा चलाता है, वही गाड़ी फिर पोता चलाएगा। ऑनर बदल जाते हैं। मैं और आप लम्हा लम्हा कदम कदम कब्र के करीब पहुंच रहे। अफसोस इस बात का है फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी कुरान नहीं पढ़ते। मैं और आप अपनी एक सांस के भी मालिक नहीं है, फिर भी ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो याद रब को करो, आंख खोलो उठो जिक्र हक का सुनो। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरमान को भी नशा, था हुकूमत का फिरमान को भी नशा। जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत को पाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला तू, अपने रब को जवानी में भूला तू, और ताकत के बूते में फूला तू। जब जवानी डलेगी तो पछताएगा, जब जवानी डलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, मालदारी में मशहूर कारून था। वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन ने धसाया तो कहने लगा, ऐसे भेजा खजाने से क्या फायदा। आँख खोलो आँख खोलो उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। कितना मशहूर किस्सा है नमरूद का, कितना मशहूर किस्सा है नमरूद का। वो भी इनकार करता था माबूद का, वो भी इनकार करता
उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐश व इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। काबिले ज़िक्र किस्सा है शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरता 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 वो लोगों से कहने लगा, मरता मरता वो लोगों से कहने लगा, ऐसी जन्नत सजाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐश व इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। कदम कदम मैं और आप कब्र के करीब हो रहे, नमाजी बन के मरो, बेनमाजी न मरो। तिलावत कुरान जिक्र रहमान करते करते मरो, नचनियों का नाच देखते देखते न मरो। हराम खाते खाते न मरो, बदमाशी जिना करते करते न मरो। अभी किसी ने किस्सा सुनाया, 1.5 साल की बच्ची के साथ किसी ने जिना किया और फिर उसको ज़बह कर दिया। शैतान भी शर्माता है कि ये कहां तक पहुंचे हुए हैं। सारी हदें पार कर देते, फ्रॉड करना हो, धोखा देना हो, जमीनें हड़प करनी हो, न कुरान याद आता है न रसूलुल्लाह का फरमान याद आता है। अरे कौन सा खेत, कौन सा दस्तावेज, कोई लेके नहीं जाता, हम क्या लेके जाएंगे। इतनी खबर आती है मेरी तुम्हारी, सही से हम करवट नहीं बदल सकते। कभी किसी मुर्दे को लिटाने जाए तो खुद लेट के देख ले कि यहाँ एक दिन मुझे और आपको भी लेटना है। स्टेज पर हकीम साहब बैठे हुए, सारे जानते हैं हकीम साहब को। रोजाना 15 पारा पढ़ते हैं, रमजान में 35 कुरान। अल्लाह इनकी तिलावत कुरान के सदक़े में हमारी बख्शिश फरमाए। हमें ऐसी तौफीक सईद अल्लाह मुझे और आपको अता फरमाए। यहाँ साल साल गुजर जाता है, 5 रुकू नहीं पढ़ते। जुमा में बयान सुनने को तैयार नहीं, आते ही नहीं जल्दी। खुतबा शुरू होता है तब आते। अब तो मौलाना साहब नमाज के बाद बयान करो और ताले लगा दो सलाम फेरने के बाद, जबरदस्ती सुनाओ। ये फिर भी छत वाला रास्ता ढूंढेंगे। कितने तो घर से सीढ़ी लेके आएंगे, चढ़ के निकलेंगे। दीन की बात आधा घंटा नहीं सुन सकते। जवानों का हाल देखो, वैसे पड़े रहते हैं, पूरी रात पड़े रहते हैं, पूरा दिन पड़े रहते हैं मोबाइल में। यग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, मिशकात शरीफ। मेरे नबी ने फरमाया 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। शबाब का क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। सेहत का क़ब्ल सुक़मिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले सेहत की कदर करो। फराग का क़ब्ल शुगलिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, फ़कीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। और हयात का क़ब्ल मौतिक, तुम्हारा जनाजा उठे उससे पहले कीमती जिंदगी की कदर करो। ये 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था। आज नीयतें खराब हुई,
मेरे तुम्हारे अमल बिगड़े, इसलिए अल्लाह ताला ने रहमत की चादर हटा दी। पूरी दुनिया देखो मुसलमानों का हाल क्या है, मस्जिदें टूट रही है, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है, तबलीगी मिशन पर पाबंदी लग रही है, मदारिस की चेकिंग चल रही है, मकातिब को उजाड़ा जा रहा है, उलमा को बगैर कसूर के पकड़ा जा रहा है, नौजवान लड़कियों को इर्तिदाद का शिकार बनाया जा रहा है, लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। चारों तरफ हालात देखो। और मेरा तुम्हारा कोई अमल, बोलो जोर से, बेशक मेरे रब की नजरों से ओझल नहीं है। मैं और आप कुछ भी करें, कौन देखता है? जोर से, कौन देखता है? अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नजरों से कभी ओट में नहीं जा सकते, तुम मेरी नजरों से कभी छुप नहीं सकते, तुम मेरी नजरों से कभी इधर उधर नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी हर हरकत को देखता हूँ, आंखों की इशारों को भी जानता हूँ, दिलों की बदमाशी को भी जानता हूँ। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह फरमाता है मैं बड़ा बेनियाज हूँ। वकम अहलकना क़ब्लकुम मिनल कुरून। मेरे नबी की विसातत से तुम्हें बड़ा खूबसूरत कुरान दिया। कुरान के अंदर पिछले नबियों की उम्मतों के वाक़यात मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम देखो, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम देखो, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम देखो। अल्लाह फरमाता है मैं बड़ा बेनियाज हूँ। जब मैं अपनी बेनियाजी पे आ जाता हूँ, मुल्कों के नामो निशान मिटा दिया करता हूँ। अल्लाह की जमीन रोजाना कई दफा शिकायत करती है, मौला जिना कर करके मेरे ऊपर चलता है, हरामखोरी कर करके मेरे ऊपर चलता है, रिश्वत लेके मेरे ऊपर चलता है, इजाजत दे लुकमा बना कर निकल जाए। अल्लाह पाक जल्ले शानू की करीम जात, रहीम जात फिर भी जमीन को हुक्म करती है ठहर जा, शायद तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह फरमाता है मैंने हुक्म फरमाया शनिचर के दिन तुम मछलियों का शिकार न करना। इन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी तरकीबें बनाई, अपना प्लान बनाया, अपना जहन चलाया। अल्लाह फरमाता है वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फक़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। रात को सोए बड़े हसीन जवान, सुबह उठे अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया, चेहरे मस्ख कर दिए। जो माँ के पेट में शक्लें बना सकता है वो बाहर बिगाड़ भी सकता है। वो सारे गुनाह हम करते हैं जो पिछली कौमों ने किए। अल्लाह चाहे तो एक ही सेकंड में मुझे और आपको मस्ख कर सकते। चेहरे किसने बनाए? बोलो, ये खूबसूरत चेहरे। ये जितने लोग, कितना बड़ा मजमा है, सबके चेहरे अलग अलग। अगर हम शक्ल आ जाए तो लोग सारे खड़े होके देखते हैं, यार देखो कोई फर्क ही नहीं लगता। वो भी जब कुछ उम्र आगे बढ़ते हैं तो फर्क आ जाता है। इतने सारे लोग बैठे हुए, सबका चेहरा अलग, सबकी आंखें अलग, सबकी जबान, सबकी बोली, सबकी आवाज। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कितनी खूबसूरत सूरत बनाई, कितना खूबसूरत चेहरा बनाया, कितना खूबसूरत माथा बनाया, कितनी खूबसूरत आंखें बनाई, कितना खूबसूरत नाक बनाया, कितने खूबसूरत होठ बनाए, कितने खूबसूरत हाथ पैर बनाए, दिल दिमाग का निजाम बनाया। तेरी हड्डियों में मैंने कैल्शियम बनाया, 360 जोड़ फिट करके दिए। अल्लाह फरमाता है आज तुझे मेरा कुरान समझ में नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ में नहीं आता, मेरी खुदाई समझ में नहीं आती। थोड़ी सी देर पंखा चला, थोड़ी सी देर एसी चला, तेरे जहन में बात आती है बिल ज्यादा आएगा, घर का एसी तू बंद कर देता है। अल्लाह पूछता है ओ आंखों वालों, ओ दुनिया वालों, तुम रात दिन जिस
किसकी हवा में जिंदा हो, आज तक कभी समझ ना आया ये किसकी हवा है। सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हो, कभी बिल न भरना पड़ा, चांद की ठंडक से फायदा उठाते हो, कभी कीमत न देनी पड़ी, बिल कभी न देना पड़ा, कीमत कभी न देनी पड़ी। अल्लाह पूछता है ओ आंखों वालों, ओ दुनिया वालों, आज तक समझ ना आया सूरज चमकाने वाला कौन है, चांद चमकाने वाला कौन है। हम 2 महीने अगर बिजली का बिल न भरे तो वो बिजली वाला आके हमारा वायरिंग काट के नहीं जाता है, लाइट नहीं चालू होगी, पंखा नहीं चालू होगा। अल्लाह ने कभी चांद का बिल मांगा, अरे बोलो, सूरज की रोशनी का बिल मांगा, तारों की झिलमिलाहट का बिल मांगा। कोरोना में नहीं देखा था ऑक्सीजन की कितनी जरूरत थी, बोतल ले लेके घूमते थे। वो दौर चला गया, हम सारा भूल गए। वो 6 साल हो गए उस बात को, लॉकडाउन के। तब 6 साल से अल्लाह एक दिन ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने 1 सेकंड के लिए हवा का निजाम बंद किया हो। मुसलसल ऑक्सीजन चलता है मेरा तुम्हारा। कदरे नेमत जवाले नेमत के बाद होती है। हमें तब एहसास हुआ था जब अल्लाह ने झंझोड़ा था। वो कितने अप डाउन में मर भी गए। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बाप के 10 बेटे हैं, माँ का पेट एक है, बाप एक है, सारा निजाम एक है। अल्लाह पूछता है इन सारे बेटों की अलग अलग सूरतें बनाने वाला कौन। अल्लाह फरमाता है दरियाओं को देखकर, समुंदरों को देखकर, पहाड़ों को देखकर, दरख्तों की कतारों को देखकर अगर तुझे मेरी खुदाई समझ नहीं आती, चल कोई बात नहीं, आईने के सामने खड़ा हो जा, अपना चेहरा देख ले, शायद मैं खुदा समझ आ जाऊं। कितना खूबसूरत मैंने कितनी खूबसूरत आंखें बनाई। आंख की कीमत उससे जाके पूछ जो दुनिया देखने को तरसता है। कितनी खूबसूरत जबान बनाई, जुबान की कीमत उससे जाके पूछ जो कलमा पढ़ने को तरसता है। कितने खूबसूरत कान बनाए, कान की कीमत उससे जाके पूछ जो कुरान अज़ान सुनने को तरसता है। कितने खूबसूरत हाथ बनाए, हाथ की कीमत उससे जाके पूछ जो लैट्रिन में पायजामा बांधने के लिए दंग खड़ा है। कितने खूबसूरत पैर बनाए, पाँव की कीमत उससे जाके पूछ जो हाथों के बल घसीट के जमीन पे चलता है। बनाने वाला में, पालने वाला में, संभालने वाला में, रिस्क देने वाला में, तरक्की देने वाला में, उठाने गिराने वाला में, तंगी में डालने वाला में, रिस्क की फरावानी देने वाला में, रहमत का दरवाजा खोलने वाला में, रहमत का दरवाजा बंद करने वाला में। अरे ओ मेरे बंदे, सेहत देने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला, मालदार बनाने वाला, गरीब बनाने वाला, तने तनहा मैं खुदा हूँ। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जिलाने वाला भी मैं और मारने वाला भी मैं। जितना चाहता हूँ जिलाता हूँ, जब चाहता हूँ मौत दे देता हूँ। आज कुरान की बातें हमें समझ नहीं आती, हदीस की बातें समझ में नहीं आती। हम घरों में रोजाना सफाई करते, मस्तूरात सफाई करती है। हम रोजाना गाड़ियों की सफाई करते, कपड़ों की सफाई करते, आइन के बगैर तो घर से नहीं निकलते। कभी दिल में भी झांक के देखा कितना कचरा पड़ा हुआ है। बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है, दुश्मनी है, हसद है, लालच है, भाई भाई की नहीं बनती, भाई की बहन से नहीं बनती। कितने भाई विरासत में से बहनों को हिस्सा नहीं देते। क्या धमकी देते, या तो बाप का हिस्सा या भाई की दहलीज। अगर हिस्सा चाहे तो भाई की चौखट भूल जा। ये बेचारी माल छोड़ देती है, भाई को नहीं छोड़ती। कितने तो एक वक्त बिरयानी खिला के चिकनी चपटी बातें करके 20 लाख माफ करवा देते हैं कि बहन तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, बस तो अब्बू का हिस्सा माफ कर दे। तो बेचारी माफ कर देती है, लेकिन तुम्हारी नीयतें कौन जानता है? अल्लाह जानता है।
अब्बू का इंतकाल हो जाए तो बड़ा भाई बाप के दर्जे में है बहनों के लिए। कितनी बहनें अब्बू की मैयत पर रोती है कि अब्बू चले गए, अब हमें कौन बुलाएगा, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई के तेवर कैसे होते हैं। बड़ा भाई बाप के दर्जे में छोटे भाई के लिए, बड़े भाई पर जरूरी मिशकात में है कि वो बाप की जगह है तो वो बाप का हक अदा करे, और छोटे भाई के लिए जरूरी है कि इसको अपने बाप की तरह समझे, नहीं है वही एहतराम करे। कितनी बहनों के दरवाजे बंद हो जाते बाप की वफात के बाद, हमारे अब्बू चले गए अब हमें कौन बुलाएगा। कितनी भी नमाजें पढ़ ले, कितने भी उमरा कर ले, कितने भी हज कर ले, कितनी भी नेकियां कर ले, लेकिन जब तक हुकूकुल इबाद में हम की पीछे है, सारी इबादत अल्लाह मुंह पे मार देगा। हमारे नबी के पास जब कोई जनाजा लाया जाता, मैंने आज ही पढ़ाया सबक में मिशकात में, आज ही सबक सुबह में मैंने पढ़ाया, जब जनाजा लाया जाता तो हुजूर पूछते कि इस पर कोई कर्जा तो नहीं है, क्योंकि कर्जे का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। अगर बताया जाता कि हाँ कर्जा है तो फिर हुजूर पूछते कि उसने इतना माल छोड़ा है कि जिससे उसके कर्जे की भरपाई हो सके, तो कहाँ इतना छोड़ा है, फिर खड़े होकर जनाजा पढ़ाते थे। और अगर कोई सहाबी कह देता कि हाँ इसने कर्जा, इसने इसके ये मकरूज मरा है, लेकिन उसने इतना माल नहीं छोड़ा है जिससे उसका कर्जा अदा हो सके, मेरे नबी नमाज नहीं पढ़ाते थे, साहबा से कहते तुम ही नमाज पढ़ा लो। क्योंकि इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में मारा गया, फिर जिंदा किया गया, फिर मारा गया, फिर जिंदा किया गया, फिर मारा गया, फिर जिंदा किया, मुतअद्दद दफा जिंदा किया गया, मुतअद्दद दफा मारा गया, लेकिन वो मकरूज है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। कितनी दफा तुम अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओ, लेकिन मकरूज मरोगे, तुम जन्नत में नहीं जाओगे। ये हदीस है, मिशकात में है। कितने कर्जा मांगते हैं तो इनकी वापसी का इरादा ही नहीं होता। मैंने कहा वापस करना है, अगर तुम लेते हो, अगर नियत है कि मैंने वापस करना है तो राह अल्लाह खोल देता है, लेकिन तुम्हारी नियत ही नहीं होती तो फिर अल्लाह रास्ते भी बंद कर देता है। कितने कहते हैं ना ला दो 10,000 कल दे दूंगा, वो कल वाला तो आता नहीं। क्यों ले किसी का पैसा, जितने पैसे अल्लाह ने दिए उसी में जिंदगी गुजार लो। 5 स्टेप आते हैं, फुकाहा ने लिखा है। एक जरूरत, नंबर 2 इबाहत, नंबर 3 मकरू, फिर हराम और फिर कुफ्र। जरूरत का मिल गया बस काफी है, उससे आगे तुम निकले इबाहत तक, चलो एक स्टेप बराबर है। इबाहत पर बस न की तो तुम आगे चले जाओगे मकरूह में, मकरूह पर बस न की तुम आगे चले जाओगे कुफ्र तक, कुफ्र पर बस न, अरे हराम तक, और हराम पर भी अगर तुमने बस न की तो बहुत मुमकिन है तुम काफिर होकर मरोगे। बहनों का हिस्सा क्यों हड़प करते, वही हिस्सों से अपना घर बनाते। अरे लानत होती है ऐसे मकानों पे जिनमें हजारों मजलूमों की आहें लगी हुई हो, उसी घरों में फिर तहज्जुद पढ़ते, अल्लाह मुंह पे मार देगा, जबकि ईंटों में किसी की आहें मौजूद है। किसी का हक नहीं खाएंगे, बोलो इंशाल्लाह, हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह, है ना। किसी का एक पैसा इंशाल्लाह ना जाए। अरे अफसोस वक़फ़ का नहीं छोड़ते, मस्जिद मदरसों का नहीं छोड़ते, सारा कुछ हजम हो जाता है। इतने पैसे लेके जाते कहाँ हैं, लेने वाले भी जानते हैं मैंने कुछ नहीं ले जाना है दुनिया से। हाँ अल्लाह ने दिया है तो माल मायूब नहीं है, तुम उससे अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हो, लेकिन उसको हासिल करने के गलत पैतरे नहीं अपनाने चाहिए। ये सारी दिलों की बीमारी है, अंदर साथ नहीं देता। देखो आज किसी की इजहार ताजियत में बैठे हुए, वो तुम चले गए दुनिया से, इनके बेटों को अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने बाप के इजहार ताजियत में ये जलसा कराया, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा आज स्टेज पर पैगाम है कि जाने वाला ये पैगाम छोड़ के जाता है कि आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, आज मैं जा रहा हूँ कल तुम जाओगे। जितने कुर्सियों पे बैठे हुए मैं भी आ गया साथ में, आज हम बैठे हुए कल कोई दूसरे मौलाना होंगे और कुर्सियों में कुछ दूसरे लोग सामीन होंगे और हम सारे कब्रों में होंगे, इजहार ताजियत के जलसे होंगे। वो भी होंगे कि नहीं वो नहीं गारंटी।
ये तो नेक बेटे होते हैं तो इस तरह की मजलिसें करवाते हैं। न बेटों के पास फुर्सत कहाँ है, आज बाप की कब्र पे जाने का टाइम नहीं है। कितने तो कब्रिस्तान जाके छोटा भाई बड़े भाई को फोन करता है, अब्बू कहाँ है, वो भी कहता है मुझे भी कहाँ पता है, फातिहा पढ़ के चारों तरफ फूंक मार दे। माँ जिंदा है तो माँ की कदर करो। 5 स्टार होटलों में खाने में वो मजा नहीं है जो माँ के हाथों से पकाई हुई चपाती में है। ऊंचे ऊंचे महल्लात में रहने का वो लुत्फ नहीं है जो माँ के पहलू में सोने का है। आलीशान गद्दों पे सोने का वो मजा नहीं है जो माँ की गोद में सोने का मजा मिलता है। अल्लामा, शेख, कारी, मुफ्ती, हजारों लक़ब दुनिया वाले देते हैं, उनमें वो मजा नहीं जो कि माँ के वही चिंट वही बबलू में आता है। माँ जब बोलती है उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है जन्नत की सारी कलियां खिल उठती है। जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, उपले थापती हुई माँ, हलीपा पोती करती हुई माँ, हाथ उठाए मिट्टी में मुलव्वस, अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। हम तो माँ को तकसीम करते हैं, हफ्ता इसके घर रहेंगी, एक हफ्ता इसके घर रहेंगी। एक माँ ने 4 बेटे परवान चढ़ाए, ये 4 होके माँ को तकसीम करते हफ्ता हफ्ता। और माँ की बारी आ जाए ना तो झगड़े अगले दिन से शुरू हो जाते। उसकी घरवाली कहती है कल अम्मी की बारी है, हमारे यहाँ आएंगी, वो पूरी रात झगड़ते। मैं मिसाल देता हूँ, आप सब जानते हैं, आपके मुशाहदे में, हम जब छोटे थे मासूम थे, अगर बाजार में माँ हमें लेकर गई, हमें भूख लगी तो माँ ने ये नहीं कहा कभी कि घर जाके दूध पिलाऊंगी, वहीं बाजार में पर्दा करके बैठ गई, दूध पिला दिया। जहां भूख लगी वहां बैठ गई पर्दा करके। और आज माँ को 4-4 दफा बुलाना पड़ता है कि यार थोड़ा खाना दे दो। क्या काम के ऐसे पैसे और ऐसी जिंदगी क्या काम की कि घरों में माँ सिसक कर जी रही है। बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है, माँ के पास बैठने का टाइम नहीं है, दोस्तों के पास बैठने के हमारे पास कितने घंटे मौजूद है। दामन में फुर्सत ही फुर्सत है। फोन करो ना यार, तू कहाँ है, बिजी है? हाँ तेरे लिए तो मैं फुर्सत में ही हूँ, मैं तुझे ही फोन करने वाला था, तेरा आ गया फोन। फिर 4-5 घंटे बैठेंगे, 2 मिनट नहीं बैठते माँ बाप के पास। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी बूढ़ी माँ को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए दुआएं मांगती है। एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमल में एक उम्र का सवाब लिख दिया जाता है। और उफ उफ कहने की इजाजत, वला तकुल लहुमा उफ, पारा नंबर 15, क्या वालिदैन के सामने उफ ना कहो, ये तो गरेबान पकड़ लेते। यहाँ कितनों की माँ कब्रों में, यहाँ कितनों के बाप कब्रों में। माँ जिंदा है तो कदर करो। 200 वलियों की दुआओं में वो जोर नहीं है जो माँ बाप की दुआओं में है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, माँ बाप जिंदा है तो उन्हीं से दुआ कराओ। ये एक दर्द है, एक बीमारी है। जितना टाइम देते हो ना इंटरनेट को, उसका मैं कहता हूँ एक हिस्सा माँ को बाप को दे दो, तुम्हारी दुनिया अल्लाह जन्नत बना देगा। किसी से फ्रॉड ना करो, किसी को धोखा ना दो, किसी के साथ धोखा ना करो, गलत बयानी से पेश ना आओ। दुनिया से कोई कुछ नहीं ले जाता। बड़े बड़े बादशाह है, तातारी ना रहे, हिटलर ना रहा, सिकंदर ना रहा, तैमूर लंग ना रहा, फिरौन ना रहा, 400 बरस तक जिसके सर में दर्द नहीं हुआ, अल्लाह ने उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया। पानी यहाँ तक आया कहा मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाता हूँ। अल्लाह कहता है तेरा ईमान मैं तेरे मुंह पे मारता हूँ।
सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए अल्लाह ने खूबसूरत कुरान दिया। आज कुरान पे धूल लगी हुई है, गाड़ियों की, मकान की, घरों की सफाई होती है, कुरान साल गुजर जाता है, जुज़दान का रंग कैसा है वो पता नहीं होता कि सफेद है या काला जुज़दान है। वो कवर चढ़ा के रखा है, बस वही पड़ा हुआ है, साल साल गुजर जाता है। मैं नौजवानों से कहता हूँ, मोबाइल तुम्हारे इंटरनेट व्हाट्सएप पर कुरान का ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप एडमिन खड़ा होके कह दे कि हाँ मौलवी साहब हमें ग्रुप बनाना है। तुम्हारे मोबाइल में व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं? कोई ये बताओ तुम्हारे मोबाइल में कुरान का ग्रुप हो? मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ये बात करता हूँ। एक ग्रुप एडमिन ने अगर कहा कि मैंने ग्रुप बनाया है और 30 दोस्तों को ऐड कर लिया उसके साथ, और रोजाना एक आदमी एक कुरान पढ़ एक पारा पढ़ता है। एक पारा पढ़ने में कम से कम ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगता है। 30 मिनट 24 घंटे में तुम अल्लाह के लिए नहीं दे सकते। तुम्हारे इसी ग्रुप से रोजाना ईशा के बाद एक कुरान खत्म होगा। एक ग्रुप से एक कुरान रोजाना। तुम्हारे गांव में अल्लाह रहमतों की बारिश बरसाएगा। दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाओ। मेरे नबी के हमारे ऊपर कितने एहसान है। मेरा तुम्हारा जिस्म का रोआ रोआ कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा को पहचानना दूर की बात, अगर हुजूर ना आते तो मैं और आप अपनी जात से भी वाकिफ ना होते। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुज़दरिब थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके कदमों से अर्श आज़म पे उजाला था। इतना खूबसूरत नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। जानवर होते सारी दुनिया, अगर हुजूर दुनिया में ना आते। बनाया दुरूद शरीफ का ग्रुप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना पढ़ने में कितना टाइम लगता है? एक तस्बीह पढ़ो मुश्किल से 3 मिनट लगता है। 24 घंटे में हुजूर के लिए 3 मिनट नहीं है। एक तस्बीह पढ़नी है, रात को बताना है 30, रोजाना कितनी तस्बीह हो जाएंगी? 15-20 ग्रुप बन गए, इंशाअल्लाह मरोगे मेरा आका तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा और सिफारिश करके इंशाअल्लाह पूरी बस्ती को जन्नत का मुसाफिर बना देगा। वहां लाले पड़ेंगे, इतना खौफनाक मंजर होगा। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मर जाओ, कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ। बाज आदमी जब मरते हैं अल्लाह की जमीन भी रोती है, इलाहुल आलमीन वो सजदा करने वाला कहाँ चला गया। बाज आदमी जब मरते हैं अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी रोते, इलाहुल आलमीन जिसकी तहज्जुद की नमाज आया करती थी, जिसकी इस्तिग़फ़ार की तस्बीह आया करती थी, जिसकी दुरूद पाक की तस्बीह आया करती थी, वो तेरा नेक बंदा कहाँ चला गया। बाज आदमी जब मरते दरियाओं में मछलियां भी रोती हैं, सुराखों में कीड़े मकोड़े भी रोते हैं, सांप और बिच्छू बिलों के अंदर रोते हैं, घोंसलों में परिंदे भी रोते हैं। इलाहुल आलमीन तेरा नेक बंदा रहमत वाला कहाँ चला गया। आज हालात ऐसे बना दिए। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, किताबुल फितन मिशका शरीफ में मौजूद है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, सो क़यामत से पहले पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, मुआशरा इतना तबाह बर्बाद हो जाएगा। सुबह को आदमी अच्छा भला मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। रात को मुसलमान है, सुबह को जनाजा उठा काफिर का उठेगा। 12 घंटे की गारंटी नहीं।
कुरान पढ़ते पढ़ते मौत ना आएंगी, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मौत ना आएंगी, इधर मौत का झटका लगेगा, उधर मुंह से गाना निकलेगा। किसी की सकरात में भी चले जाओ ना अस्पताल में, तो सबसे पहले यही सवाल करता है, बेटा दुकान कैसी चलती है? अब्बू फिक्र ना करो, उसके लिए हम सारे बैठे, हम तो आपकी दस्तखत लेने आए। इंतजार में होते हैं कि बाप मरे कब के हम सारा हिस्सा हड़प कर जाए। बड़ा भाई सोचता है छोटे भाई को देना ही नहीं, छोटा भाई सोचता है बड़ा भाई है बाप के दर्जे में, वो थोड़ा मेरा हजम कर जाएगा। फिर मौत तक कचहरियों में लड़ते रहते हैं एक दुकान के लिए। अब ये दुकान न ये ले जाएगा ना ये ले जाएगा। इतनी खतरनाक बस्तियां आई हमारे हमसे पहले दुनिया में। ये नाखून में इतनी ताकत थी, नाखून में तो पहाड़ तराश लेते थे और 2-2, 3-3 हजार साल जीते थे। हमारी जिंदगियां तो कितनी मुख्तसर है। अल्लाह ने इनका अंजाम अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, बिजली का कड़काया वहीं की वहीं पड़े रह गए। पूरी की पूरी बस्ती अल्लाह ने उलट दी। वअम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, हवा का अजाब, हवा तो नेमत है, अल्लाह ने उसको अजाब बना दिया था, बस्तियों की बस्तियां उठा के ले गई। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम देखो, यूं उठाया जमीन का टुकड़ा और यूं पलट दिया, क्योंकि उन्होंने निजाम को पलटा था। लड़के लड़कों के साथ बदकारी करते थे। हम जिन्स के साथ बदकारी हराम है। अल्लाह ने इसके लिए एक अलग निजाम बनाया है। तवालुद और तनासुल का सिलसिला हम जिन्स से नहीं चलता, मुखालिफ जिन्स से चलता है। मर्दों के लिए औरतें, औरतों के लिए अल्लाह ने मर्द जोड़े बनाए। वो इतनी बदकार कौम थी, लड़कों लड़के से जिना करते थे। तो ये निजाम इन्होंने उल्टा, अल्लाह ने पूरी बस्ती उलट दी। जैसी सजा वैसा अल्लाह ने, जैसा जुर्म था वैसी सजा दी। जो खुदा उन कौमों को पलट सकता है, बोलो जोर से बेशक वो खुदा आज भी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। इस्लाम का नूर दिया, कुरान की रोशनी दी, ईमान का नूर दिया, रसूलुल्लाह के फरामीन का अल्लाह ने रोशनी दी। कितना खूबसूरत मजहब दिया, मजहब इस्लाम। और इस इस्लाम के पीछे कितनी कुर्बानियां हैं, देखो तुम किताबों में। बल्कि इस इस्लाम के पीछे सबसे पहले शहीद होने वाली खातून है सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। हमारी औरतों को मेकअप से फुर्सत नहीं है। वो कौन, क्या जाने सुमैया कौन है। आधा दिन तो स्नैपचैट में चला जाता है, आधा दिन तो आईनों के सामने गुजर जाता है, बनाओ सिंगार में ही गुजर जाता है। शादियों में तो इतना मेकअप, इतना मेकअप, कभी तो खाविंद नहीं पहचानता मेरी घरवाली है। सलाम कर देना इसकी बीवी, तौबा तौबा, अजनबी औरत सलाम कर, तेरी हूं मैं, माफ करना मैं मोहतरमा, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। क्या माफी मांगते हो, ये सारा तुमने तो खरीद के दिया है। दुबई से मंगवाते, पूरा पूरा किट आता है 20-20 हजार का। तुम फातिमा की बेटियां हो, तुम सुमैया की बेटियां हो, तुम आयशा की बेटियां हो, तुम खदीजा की बेटियां हो, तुम उम्मे सलमा की बेटियां हो, तुम उम्मे हबीबा की बेटियां हो, तुम सुमैया की बेटियां हो, तुम ज़ैनब बिनते जहश की बेटियां हो, तुम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा की बेटियां हो, तुम उम्मे सलमा की बेटियां हो, तुम उम्मे हबीबा की बेटियां हो, तुम जुवेरिया मैमुना की बेटियां हो, तुम खदीजा की बेटियां हो, तुम उम्मे कुलसुम रुक़ैया ज़ैनब और फातिमा की बेटियां हो। अरे कल क़यामत का दिन होगा, ये सारी मेरे नबी की बीवियां, सारी मेरे नबी की बेटियां, ये जितनी सहाबियात जिन्होंने इस्लाम के पीछे कुर्बानियां दी, हमारे घर की मस्तूरात इनको क्या मुंह दिखाएंगी। जिनकी शादियों में इतना मेकअप, वो सारा शरीयत का मजाक उड़ाती है, दीन का मजाक, कुरान का मजाक, रसूलुल्लाह के फरमान का मजाक। ये जितने भाई बैठे हुए सब अपनी बहनों के जिम्मेदार हैं, जितने शौहर बैठे हुए सब अपनी बीवियों के जिम्मेदार हैं। हमारी बीवियां घरों में मैली कुचेली घूमती है और शादियों में इतनी तैयार होती, सारा मामला उल्टा हुआ है। तैयार होने का हुक्म तो शौहर के सामने। अपना जिस्म अपने शौहर को दिखाना है, दूसरों को थोड़ा ही दिखाना है। परफ्यूम लगाती, हराम है।
खवातीन के लिए परफ्यूम हराम है। खुशबू भी ऐसी हो जिसमें बू रंग हो, बू ना हो। हाँ तो कितने दूर से पता चल जाता है। कोई आ रहा है माशाल्लाह। लिखते लिखते ये थक जाते किरामन कातिबीन। जितने बाप बैठे हुए, तुम अपनी बेटियों के जिम्मेदार हो, न भेजो ऐसे हालात में अपनी बेटियों को ऐसे फंक्शनों में और शादियों में। ऐसी शादियां ही क्यों करते हो कि जिस पे अल्लाह की लानत बरसती हो। शादी वाला उन्वान देखना हो तो रसूलुल्लाह की शादी देखो, 11 शादियां फरमाई। इतना जाम धाम तो नहीं था। वलीमा सुन्नत है। ये सारा दूसरा जो इधर उधर से मिला हुआ है वो सारा शैतानी अमल है। नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है गाफिल संभल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, बाज आजा ए बद अमल। ये सारी शैतानी चाले। सबसे पहले इस्लाम के रास्ते में कुर्बानी देने वाली कौन? जोर से सुमैया रदी अल्लाह ताला। और सारा मक्का मौजूद है मैदान में, सारे तमाशा देखने आए। सुमैया को आज सजा दी जाएगी। जुर्म क्या था, सजा क्या थी? क्यों कहती है खुदा एक है? क्यों कहती है मोहम्मद सच्चा पैगंबर है? क्यों कहती है मोहम्मद आखिरी नबी है? अबू जहल मौजूद है, कुतबा मौजूद है, कुतैबा मौजूद है, उकबा इब्न अबी मुआयत मौजूद है, अबू लहब मौजूद है, अबू सुफियान मौजूद है, मक्का के बड़े बड़े काफिर मौजूद हैं। अबू जहल कहने लगा सुमैया एक दफा कलमे का इनकार कर दे, नबी की नबुव्वत का इनकार कर दे, अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दे, रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। दुनिया की सारी औरतों का ईमान इकट्ठा करके एक तरफ रखो, मानेकपुर वालों मेरा तुम्हारा ईमान है सुमैया के कदमों से उड़ी हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ओ अबू जंगल, ओ अबू लहब, ओ उतबा, ओ तैबा, ओ सारे जालिमो, तुम जो मर्जी चाहे कर लो, कलमा मेरे रगो रेशे में बस गया, कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बस गया। फकजिमा तक़ाद, जो मर्जी चाहे कर लो, मेरे जिस्म की बोटी बोटी नोच लो, मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दो, तुम सारे मिलकर मेरा ईमान नहीं छीन सकते। मारना चाहते हो, मैं यहीं खड़े खड़े, अभी तो मरी नहीं मैं, तुमने मुझे मारा नहीं, यहीं खड़े खड़े जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजों को खुला देख रही हूँ। यहाँ तो ब्याज खा के मरने वाला हो ना, सारे कहते शहीद, इतना खींचते जैसे कि वहां कोई जंग में शहीद हुआ हो। थिएटर में भी मर जाए कहते शहीद। फिर अपने बेटे अम्मार को बुलाया, कहा अम्मार इधर आओ, ये सारे जितने खड़े ने सबका प्रोग्राम है मुझे मारने का, मेरे दिल की तमन्ना है रसूलुल्लाह के पास जाओ, मेरा आखिरी सलाम पहुंचा दो, कहना कि मेरी अम्मा अल्लाह की तौहीद पे कुर्बान हो रही है। फिर कहा मेरी तमन्ना है हुजूर को कहना कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आए, मेरे दिल की तमन्ना इधर इसका बरछा लगेगा, उधर आपका दीदार हो जाएगा, आपका दीदार करते करते मरना चाहती हूँ। हुजूर तशरीफ़ लाए, इधर इसने बरछा मारा, जिस्म के परखचे उड़ा दिए, उधर हुजूर रसूलुल्लाह का दीदार मिल गया। इश्क हो तो ऐसा हो। हमारे यहाँ मैयत के कैसे लोग मरते हैं देखो, दुनिया बकते बकते तड़पते तड़पते लोग जाते हैं। अल्लाह सकरात से हमारी हिफाजत फरमाए, दीन के रास्ते में मर जाए। आज बहुत बड़ा एक सितारा दुनिया से चला गया, आप सभी लोग जानते हैं, बारडोली वाले हाजी यूसुफ बाबा, 54 मरतबा जिन्होंने 4 महीने लगाए, 3 मरतबा पैदल हज किए, 54 मरतबा।
जिंदगी के जितने साल थे, कुछ साल को मुस्तस्ना करके जितने साल उनके थे, हर साल में इन्होंने एक मौसम अल्लाह के रास्ते में दिया है। तो कितना रश था इनकी नमाज जनाजा में। ये अच्छा काम करके खुली किताब है इनकी जिंदगी। मर गए, उम्मत को एक पैगाम देकर गए कि आज मैं जा रहा हूं, कल तुम्हारी बारी है। हमें 3 दिन निकलना हो, बुखार चढ़ जाता है। हम तो गश्त वाले आ जाए ना तब भी कहते थे कि भाई कह दो अब्बू घर पे नहीं है। बेटा भी बड़ा होशियार कहता है अब्बू नब्बीज कहाँ, अब्बू घर पे नहीं है। इंग्लिश मीडियम पढ़ता है ना बेटा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ीरू को मौत का मजा चखना है। शहादत देखो, अमीर हमजा की शहादत कैसी थी, इन्होंने दीन के लिए कैसी कुर्बानी दी। किसी शहीद की लाश के पास बैठकर बेटी रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर हमशीरा रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर बेटी रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर बीवी रोई। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म के 11-11 टुकड़े कर दिए गए। लाश के पास बैठकर खुद काली कमली वाले रोए, खुद जख्मी है, रुखसार मुबारक में जंजीर का कड़ा फंस गया। सारों ने निकालना चाहा मगर निकलता नहीं। अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दांतों से खींचा, निकाल तो दिया। अबू उबैदा के 4 दांत शहीद हो गए। इधर पता चला काली कमली वाले को, मेरे चचा को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। लाश के पास तशरीफ लाए, 11-11 टुकड़े पड़े हुए। चचा के चेहरे की तरफ देखा, नाक नहीं, और इधर उधर नजर घुमाई, दोनों आंखें नहीं, और नीचे को देखा, दोनों लब नहीं, मुंह में झांक के देखा, जबान नहीं, और नीचे की तरफ देखा, पेट फटा हुआ है, जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं। उंगलियां काट के हार बनाया था, मुसला किया गया था। हमारा इस्लाम मुसला की इजाजत नहीं देता। एक बार की मारना हो तो एक बार की मारो, हाथ काटे पांव काट दी, इस तरह की इजाजत इस्लाम में नहीं है। हमारा इस्लाम औरतों को कत्ल करने से मना फरमाता है, हमारा इस्लाम बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाता है। अमीर हमजा का ये हाल, 4000 जवानों की ताकत मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई थी। और एक जवान 4 शादी कर सकता है, तो 4 को 4 में ज़रब दो, 16,000 जवानों की ताकत थी मेरे नबी के अंदर। लेकिन जब अपने चचा का ये हाल देखा, धड़ंग से जमीन पर गिर पड़े। जब होश आया, कहा मेरी फूफी सफिया यहाँ ना होती तो मेरे चचा के टुकड़े भी ना उठाता। अल्लाह तू ऐसे राजी है तो फिर मैं भी राजी हूँ। अरब का सरदार है, नबी का चचा है, कुरैश खानदान से है, लेकिन 11 टुकड़े जोड़ के पूरी एक चादर कफन की नहीं है। चेहरा छुपाते पाँव खुल जाते, पाँव छुपाते चेहरा खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया चेहरा ढांप लो और पाँव में इस्खीर नामी घास डाल दो। फिर कहा सैयदुश शुहदा अल हमजा, सारे शहीदों का सरदार अमीर हमजा है। ये यूं ही शहीद नहीं हुए, ये नमाजों में शहादत की मौत मांगते थे। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर नमाज के बाद दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। इलाहुल आलमीन, बिस्तर की मौत से पनाह मांगता हूँ, घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, बाजार की मौत से पनाह मांगता हूँ, अस्पताल की मौत से पनाह मांगता हूँ। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मुझे ऐसी मौत दे, दर तेरा सर मेरा, दिल मेरा घर तेरा। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमगीद तूलानी, तेरे रास्ते में शहादत की मौत मांगता हूँ। इधर उधर मरने से अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक जल्ल शानू ने साबित कर दिया, ओ मेरे महबूब के महबूब, मैं तुझे इधर उधर कैसे मौत दे सकता हूँ। मेरे यार ने सारी सारी रात झोली फैला फैला कर तेरे ईमान का मुतालबा किया था। किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए उहुद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए करबला की मिट्टी आएगी।
किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन का पत्थर आएगा। ओ मेरे महबूब के महबूब, जब तेरी शहादत का केस मेरी अदालत में पेश होगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी का मेहराब आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। खंजर मारा था जहर आलू, और बाहर निकलते निकलते 13 सहाबा को जख्मी करके निकला था। उसी जख्म में हजरत उमर फौत हो गए थे, मांगते थे शहादत की मौत। और दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा जअल मौतना फी बलद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इधर उधर मत दफनाना, मुझे मेरे यार के करीब सुलाना। अल्लाह ने इतना करीब सुलाया, जा तेरा दिल करे तू देख ले, इनका दिल करे ये देख ले। इनकी जगह तो वहां थी जन्नतुल बकी में। इन्होंने मांगा था अम्मी आयशा से, अम्मी आयशा ने कहा ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी है, लेकिन तुम्हारा ईमान मेरे नबी ने कैसे मांगा है मैं वो हाल जानती हूँ। मैं ये हिस्सा इशार करती हूँ, मैं वहां बकी में सो जाऊंगी, आप यहाँ तशरीफ ले आइए। और अपने बेटे इब्ने उमर से कहा था, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा लेकर अम्मी आयशा के पास फिर इजाजत मांगने जाना, लोग यूं न कहे कि हुकूमत का दबाव डाल के ये जमीन हड़प कर ली थी, ये हिस्सा ले लिया था। फिर इजाजत मांगी अम्मी आयशा ने, फिर भी कहा था मैंने पहले भी इजाजत दी है, आज भी इजाजत देती हूँ। फिर रोजे में इनकी तदफीन हुई। जैसे अभी हमारे भाई सुना रहे थे ना, मदीने की मौत, बोलो आमीन, अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमाए। जानबूझ के भीड़ में नहीं जाना है मरने के लिए, तो खुदकुशी है। कहाँ मरना है वो तो अल्लाह जानता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। कयामत कब आएंगी, माँ के पेट में क्या है, बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी, कल क्या कमाओगे, कल हम क्या कमाएंगे और कहाँ मरेंगे, सिर्फ कौन जानता है, अल्लाह। यहाँ मरेंगे या मन इस्ता, मिशकात ने मन इस्ता मिनकुम अन यमूत फिल मदीना फलयमुत, जिनके पास असबाब हो कि वो मदीने में मरे तो उनको मदीने में मरना चाहिए। कितने तो हज का वीजा लग जाते हैं तो इमाम मस्जिद से दुआ कराते, मुझे सब दुआ करूँ, वहाँ बहुत भीड़ होती है, दब के कहीं मर न जाऊँ, सही सलामत घर आ जाऊँ। एक डिब्बा कलमी का आपको भी दे दूंगा, वजन वाली दुआ कर दो। आता है डिब्बा, 4-5 आते होंगे खजूर। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, इनकी शहादत देखो राह खुदा में। मस्जिद नबवी में की जमीन इन्होंने खरीद के दी थी, कुआं मीठे पानी का इन्होंने खरीद के दिया था। आज 18 दिन हो गए इनका गल्ला पानी बंद कर दिया था। भूखा प्यासा उस्मान घर आए, अपनी बीवी नाइला से कहा मेरा पायजामा निकाल के दो, अब तक नहीं मांगा, अब क्यों मांग रहे हो। कुरान पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, ख्वाब में हुजूर का दीदार मिला। हे मेरे भूखे उस्मान, हे मेरे प्यासे उस्मान, आ जा, शाम का रोजा इकट्ठा इफ्तार करेंगे। पायजामा इसलिए मांगता हूँ, मारने वाला छुरा मारेगा, खंजर मारेगा, तलवार मारेगा, मैं इधर उधर उछलूंगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरी शर्मगाह पे किसी की नजर पड़ जाए। जो हाथ मेरे नबी ने अपना हाथ पे दिया था, उस्मान ने कभी वो हाथ शर्मगाह पर नहीं ले गए। मेरी 2 बेटियां उस्मान के निकाह में थी हमारे नबी की, 40 बेटियां होती, एक मरती दूसरी उस्मान के निकाह में दे देता। और इतने सखी थे, कहत पड़ा था, सारे मुल्क के शाम से आया हुआ सारा ऊंटों का गल्ला तकसीम कर दिया था राह खुदा में। बल्कि आपने हजरत अली से कहा था, फातिमा से तेरा निकाह करना चाहता हूँ, तेरे पास महर में देने को कुछ है? कुछ नहीं, बस यही एक जीरा है, कहाँ जाओ बेच के आओ। तो बाजार में उस्मान से मुलाकात हुई। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला ने पूछा, अली इधर, खातून जन्नत से मेरा निकाह तय हुआ है, मैं महर कुछ नहीं है देने को, ये बेचने आया हूँ। कहा चलो सौदा कर लेते। खुद ही खरीद लिया, वो भी वापस कर दिया और पैसे भी दे दिए। मेरे नबी ने पूछा, अली जीरा भी है पैसे भी है, ये कहाँ से? कहा बहुत बड़ा व्यापारी मिला था, ऐलान किया है नबी की बेटी का सारा खर्चा उस्मान देगा।
आपने सिख के उलट पलट किए, कहा उस्मान आज के बाद तुझे कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शहादत तो करबला वाले हुसैन ने दी। हम सारे हुसैनी हैं, बोलो जोर से, हम सारे हुसैनी हैं। बेशक हम सारे मोहम्मदी है। तो किरदार हुसैन, हुसैन याद है, किरदार हुसैन याद नहीं है। 72 आले रसूल के सर नेज़ों पे चढ़ गए, जिनकी मौत का तमाशा बनाया गया, जिनकी लाशों के जुलूस निकाले गए। यज़ीदियों ने क्या कुछ नहीं किया था, बल्कि किताबों में मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है, एक औरत थी जो अपने अकलौते बेटे वहब इब्ने कल्ब के साथ इसी मैदान से गुजर रही थी जहां करबला की जंग चल रही थी। शोर की आवाज आई तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये शोर कैसा है? कहा अम्मा मैं नहीं जानता। कहा जाओ देख के आओ। बेटा आया तो वहां जंग चल रही थी। बेटा आया और कहने लगा माँ गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा यजीद कुत्ते गुलशन नबूवत को उजाड़ रहे, हुसैन के बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर रहे। वो माँ कहने लगी मैंने तुझे हलाल का जना वुजू कर कर के दूध पिलाया, इतना बड़ा जुल्म देखकर तुझे मेरे पास आने की फुर्सत कहाँ से मिल गई? तो कहा माँ मेरा इरादा था उसी वक्त शरीक हो जाता, लेकिन तू यहाँ मेरे इंतजार में रहती, ये भी तो अच्छा नहीं था। दरअसल मैं तुझे कहने आया हूँ, इजाजत लेने आया हूँ। आजकल बेटे कहाँ जाते हैं ना, माँ कुछ नहीं जानती, घर वाली सब कुछ जानती है। माँ की दुआ लेके निकलो, घर में आओ तो पहले माँ का हाल पूछो। माँ की आयतुल कुर्सी दम करा के निकलोगे, इंशाल्लाह अल्लाह एक्सीडेंट से बचा लेगा, अल्लाह हादसे से बचा लेगा। घर आते हो ना, माँ पूछती है बेटा कुछ खाया है कि भूखा आया है? बीवी हाथ देखती है कि कुछ लाया है कि नहीं लाया है। बेटे कहाँ जाते माँ? और अभी जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, आज नौजवानों का हाल देखो तुम। ये 2:30 बजे तक होटलों में रहेंगे, 3 बजे तक होटलों पे रहेंगे। न बाप जानता है मेरा बेटा रात को कब आया, न माँ जानती है मेरा बेटा रात को कब आया। बस सीढ़ी पे चाबी रखी हुई है, खोल के सो जाते, उठते जोर से पहले। न बाप कुछ से कह सकता है, न माँ कुछ कह सकती है, क्योंकि ये जबान चलाते। जाओ देखो बैरूनी ममालिक में लोग कितनी मेहनत करते हैं। हमारे पास तो बहुत टाइम है। यूके में किसी से मुलाकात करनी हो तो फोन करना पड़ता है, भाई तुम अपना टाइम दो। वो कहता है 4 बजे आना, हम 4:30 बजे नहीं जा सकते, वो निकल चुका होता है। तो 1-1 घंटे का पैसा कमाते वो लोग, 1-1 घंटे पे। हमारे पास तो घंटों के घंटे पड़े हुए। ले जाओ, हमारे दामन में बहुत फुर्सत है, ले जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि हमारा ये जो गांव, बल्कि अतराफ जवानी के जितने देहात है, अक्सर कितने मकान में कोई 3-4 मकान ऐसे मिलेंगे, वरना सब मकान में कोई ना कोई बैरूनी ममालिक में है। कितनी मेहनत से वो लोग काम करते, कमाते। हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। अगर फुर्सत है तो सूरह यासीन पढ़ो। पहले बताओ इंशाल्लाह कुरान का ग्रुप बनाएंगे। नौजवानों से कहता हूं इंशाल्लाह बोलो जोर से। दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाएंगे ना इंशाल्लाह। आधा घंटा पढ़ना है, तुम नहीं पढ़ सकता आधा घंटा, पढ़ना है आधा घंटा इंशाल्लाह। और जो हिम्मत करेगा सारा सवाब उसको मिलेगा, सारा सवाब उसको मिलेगा। वो माँ कहने लगी मैंने तुझे हलाल का जाना वुजू कर करके तुझे दूध पिलाया, इतना बड़ा जुल्म देखकर मेरे पास आने की फुर्सत कहाँ से मिल गई? वो बेटा वहां भी इब्ने कलब कहने लगा अम्मा जान, ऐ सुनसान इलाके में तू मेरे इंतजार में खड़ी रहती, ये भी तो गवारा नहीं था। इरादा है मैं वापसी का इरादा है, मैं तो दरअसल तुझे इजाजत लेने आया हूँ। कहा फिर जा चल। फिर आया वो मैदान, खेमे में गया, इमाम हुसैन से इजाजत मांगी। मैं भी मैदान जिहाद का सिपाही हूँ, खानदान नबूवत का सिपाही हूँ, आपकी इजाज़त चाहता हूँ। कहाँ इजाज़त है? वो नंगी तलवार लेके गया, कहीं यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। फिर किसी को, वो माँ भी वहाँ खड़ी है, वो माँ किसी यजीदी को मौका मिला, मारी जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ी। माँ ने देखा मेरे बच्चे की गर्दन कट गई है, रोई नहीं, कपकपी तारी नहीं हुई, जमीन पर नहीं गिरी, जोली फैलाई, कहा या अल्लाह मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल फरमा। वो यजीदी ने देखा इसकी माँ है, तो मजीद तड़पाने के लिए वो कटा हुआ सर उठाया, उसकी गोद में डाल दिया, तो चूमा चाटा नहीं उठाया, वापस मैदान में छोड़ दिया। अल्लाह के नाम पे देने के बाद वापस नहीं लिया करते। हम अपने बच्चों, आज बच्चों को बाप बिगाड़ते हैं, आज बच्चियों को और बच्चों को माँ बिगाड़ती है, कि कुछ कहते ही नहीं है।
और जब किसी के घर में अकलौता बेटा, एक ही बेटा हो, तो वो तो हिटलर बन जाता है। दादा का प्यार, नाना का प्यार, पड़ोसियों का भी प्यार, सबका प्यार, इतना प्यार इसे हजम ही नहीं होता। तो फिर वो कारनामा अंजाम देता है जो 10 बच्चे मिलकर भी नहीं करते। हमारी बच्ची चली गई गैर के पास, फिर हम क्या कर सकते हैं? कब क्या कर सकते हैं? जब तक बच्ची मेरे तुम्हारे घर में मौजूद है। जब दहलीज छोड़ दी, बस बात खत्म। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करो, इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें कुरान की तालीम दो। छोटे छोटे बच्चों को मस्जिदों में भेजो, इन्हें मकतब में भेजो, इनको दीन की, कुरान की, रसूलुल्लाह के फरामीन की तालीम से आरास्ता करो। इंशाअल्लाह तो हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे रोज़ाना कुरान का फातिहा भेजेंगे, अल्लाह हमारी कब्र को आसूदा बना देगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए, मरहूम की मगफिरत फरमाए। जिस मकसद के तहत ये मजलिस रखी गई है, अल्लाह ताला हमारे यूनुस भाई हजात के वालिद मोहतरम को करवट करवट जन्नत की बहार नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमरान भाई यूसुफ असवात इंतकाल हो गया। ओह अच्छा, देखो ये नौजवान चले गए इमरान भाई, हार्ट अटैक आया था। अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए, इनकी नेकियों को कबूल फरमाए। शाहबाज तबरेज कापड़िया, शनिवार ना सफ़र छे, सफ़र नहीं आसानी, अल्लाह ताला इनका सफ़र आसान बनाए। अल्लाह जल्द से जल्द आसानी के साथ अल्लाह ताला इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाए। लो भाई साहब, जी दुआ कर लेते। नात सुनानी पड़ेगी। यहाँ के लोगों में एक जज्बा तो है, बयान से पहले इनको ठंडा गरम पिला देते, फिर भी बैठते। कितने तो पी के निकल जाते हैं ठंडा। इसका मतलब ये ठंडा पीने नहीं आते, पीने आते तो पी के चले जाते, बैठते क्यों? ठंडा पीना आते कौन? हाथ उठा के बताओ, कौन ठंडा पीना आता? बयान सुनने कौन आता है? ओहो माशाअल्लाह। एक नया कलाम है। उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दामन इस्लाम में आए, अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया। उस उन्वान के मुतालिक ये कलाम है। उमर आ गया है, उमर आ गया है, उमर आ गया है, शाखे दुआ पे समर आ गया है। नबी खुश है मेरा, उमर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है। नबी जिसको मांगे खुदा जिसको भेजे, नबी जिसको मांगे खुदा जिसको भेजे, नबी जिसको मांगे खुदा जिसको भेजे, वो नायाब मोती गोहर आ गया है, वो नायाब मोती गोहर आ गया है। नबी खुश है मेरा, उमर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है। उमर आ गया है, उमर आ गया है, उमर आ गया है। आगे वाला शेर। गज़ब का हदूद जिसे को कहती थी दुनिया, गज़ब का
जिसको कहती थी दुनिया, गजब का अदू जिसको कहती थी दुनिया, खुद चल के आका के घर आ गया है। नबी खुश में मेरा उमर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है। और एक शेर, मोहम्मद की आवाज के जो दुश्मन, मोहम्मद की आवाज के जो दुश्मन, मोहम्मद की आवाज के जो दुश्मन, उन्हें करने से रोज़बर आ गया है, उन्हें करने से रोज़बर आ गया है। नबी खुश में मेरा उमर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है। नरी कब कभी है खुदा दुश्मनों पर, नरी कब कभी है खुदा दुश्मनों पर, नरी कब कभी है खुदा दुश्मनों पर, मोहम्मद का शेर बबर आ गया है, मोहम्मद का शेर बबर आ गया है। नबी खुश में मेरा उमर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है। खुला काबे का दर नबी मुस्कुराए, खुला काबे का दर नबी मुस्कुराए, खुला काबे का दर नबी मुस्कुराए। उमर कुफ्र पे बन के डर आ गया है, उमर कुफ्र पे बन के डर आ गया है। नबी खुश में मेरा उमर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है। उमर आ गया है, उमर आ गया है, उमर आ गया है। और एक शेर, लगे ऐसे आना उमर तेरा जैसे, लगे ऐसे आना उमर तेरा जैसे, लगे ऐसे आना उमर तेरा जैसे, खुदा का खुसूसी अमर आ गया है। नबी खुश में मेरा उमर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है। आखिरी शेर, वो फारिक माबैन खैर और बशर है, वो फारिक माबैन खैर और शर है, वो फारिक माबैन खैर और शर है, वो फारिक माबैन खैर और शर है। खुदा की पसंद एक बशर आ गया है, खुदा की पसंद एक बशर आ गया है। नबी खुश में मेरा उमर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है, वो शाखे दुआ पे समर आ गया है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह।
मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा। मौत से पहले पहले या अल्लाह तेरी मर्ज़ियात वाले अमाल करने की तौफ़ीक अता फरमा। हराम खोरी से, हराम कारी से, बदकारी, बदमाशी, ज़िना से या अल्लाह हमारी नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिस मकसद के तहत ये बज़्म सजाई गई है या अल्लाह 100% खैर मुक़द्दर फरमा। मरहूम की करवट मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह इनके औलाद को सब्र जमील अता फरमा, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। भाइयों में खूब प्यार मोहब्बत अता फरमा, भाइयों को बहनों से, बहनों को भाइयों से या अल्लाह खूब प्यार नसीब फरमा। या अल्लाह पूरे मजमे में जिनकी माएँ ज़िंदा है या अल्लाह कदरदानी की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह जिनके बाप ज़िंदा है या अल्लाह अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह जिनके माँ बाप या अल्लाह दुनिया से चले गए या अल्लाह रोज़ाना कुछ न कुछ पढ़ के या अल्लाह इसारे सवाब करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि